So first, some observation with respect to sociology paper one. So sociology paper one is following the pattern. Now, the pattern is that in sociology paper one, there will be mostly previous year question and PYQs will be now designed in a different manner. There are some changes as well in terms of how they are making the question. Like there are a lot more comparative question, the comparison between different theories. And in one question, they have written in one line three thinkers and their theories, and I've told you to compare. So now they are going a bit deeper into the theoretical aspects of sociology paper one. So now it is very, very important that you make or orient your entire preparation with respect to sociology previous year question themes. Our one-to-one students already know that I had posted the previous year question themes, and our test was also based on that. The reason is that in sociology paper one, UPSC is clearly giving you an indication since last 5 to 6 years that these are the themes that we are focusing on, and you have to prepare around that. But what is happening nowadays is one of the error or mistake that you people are doing is that you are referring to lot of not lot of resources. And at the end of the day, when you write in the examination hall, you are not able to reciprocate the content in desired space and in desired time. This is a big problem. That is why we thought that for now, like sociology paper two, I am posting my handwritten notes. For sociology paper one, we will make soft copy revision notes unit wise and post again, so that you don't have any excuse left that, sir, I do not have notes, I do not have concise notes. After posting those notes, there should not be any excuse. Next year, when mains examination will come, my student should not say, sir, I was not able to write. You have to write it, and you all have to aim 70% marks in those repeated questions. Because, see, paper one is one, not out of these two papers, paper one is fairly static. If you are getting good marks one time, you will get every time good marks. This is the beauty of this paper. However, sociology paper two is bit dynamic, but still, if you will prepare in a manner that we will convey you, and I will discuss the sociology paper two as well, the approach slightly different, not entirely different. There is a slight difference between sociology paper one and paper two. Okay, a slight difference in approach, but the discipline is same. That whatever you are reading, you have to understand it. You simply can't glance. This is optional paper. This is not general study that you are just glancing and writing and making points there. This is optional paper. There need to be depth, but still you cannot take more number of words, because now for 20 marks for straight third year they have given only 3 pages. So I think they have made up their mind that for 20 marker they will give only 3 pages. So you don't have luxury of space, you don't have luxury of time, both. So you need to be having every concept at your tips, and that is why it is important to focus on one resource many times. If you are reading sociology and common sense from 5 different notes, it won't help you. You have to read one notes many times. This is the recipe to get maximum possible marks. And you can get even 150, 155, 160 as well. I have got 160 once in sociology paper one, and it is doable. If you are getting 150, 160 in sociology paper one, your mains is 100% clear. Your mains is 100% clear. Forget about your sociology marks. This is the power of sociology paper one. And sociology paper one depth will help you in sociology paper two also, because the foundation is given in paper one only. These foundational concepts were redefined by studying the Indian villages and Indian society by thinkers, some colonial and some Indian thinkers. That became introducing Indian society. When you read here kinship, lineage, descent, all the concepts, you read their kula, you read their na, kulbadhu ka concept, you read their kanyadan. So these are the Indian versions. The central concepts remain same. The central idea behind all these cultural practices is patriarchy.
because you are assuming that a woman is pariah dhan. Okay, so the central concepts will remain same. That is why I say that reading paper one is difficult compared to paper two. Paper two will be bit easier. The thinker's name will be easier. The concepts will be also easier because you would have read the foundation and it won't take much time. But paper two is all about correlation and how in depth you have done study of sociology paper one will also reflect in your sociology paper two marks. That is why it is very, very important to understand the concepts. Okay, this is a general observation. Another observation based on the experience of my students who were inside the examination hall and who have cleared the examination as well. I had detailed call with them. Like Preeti Chauhan, I had a detailed conversation. So she said that, sir, in sociology paper one, the questions were straightforward, but that also gave an extra pressure to write better than others. So now utilization of thinkers, etc., became a kind of a pressure that if sociology and common sense is asked, everybody knows it. So how to score zero point 0.5 marks extra? Now you have to think on this line from now onwards. You cannot think then and there. You cannot go in the examination hall and different new concepts will come. Nothing happens there. Every toil, every hard work will happen here only. Everything. So you have to work hard here. How you can make zero point 0.5 marks extra? If you have read our model answer, I don't know if you are reading still our model answers or not. After seeing the paper as well, you should at least get enthusiasm because we are providing you two thinkers per themes for introduction, not only for the topic. For introduction, we are giving you option. So if you are inculcating those introduction, some of the thinkers, some of the good conclusions, some of the diagrams, some of the examples, that is how you can now make a difference and get 1 marks extra than others. And one marks accumulated can make a huge difference. It will make combining both the paper a difference of 40 marks. So the average is 220 to 230 and you will cross 270. This is the difference that you have to generate. And that difference will come through revision, inculcation of model answer, discipline, practice, revision, practice. This is what will give you. This is what will give you 270 plus, nothing else. If someone is telling you to read Blue Horlumbus, Orange Horlumbus, Weissing original book, they are making fool out of you. This is impossible. So you have to narrow down your resources. This is very, very important. Otherwise, same time next year after giving mains, you will say me, sir, I wasn't able to do justice. The paper was simple, still I wasn't able to do justice. Yes, a few students have told me because I was telling them to focus on these basic repeated themes, but they were busy in some content enrichment enhancement based on the um, capitalist buzz. So what is happening? Yes, you take enrichment course and you will refine it. ना तो वो enrichment याद हुआ, ना तो this ना the repeated themes, the core concepts they could revise, and they fizzled out. So you have to learn from others' mistake and be very disciplined. We don't have too much time. We are left with see the September is going slowly, slowly. आधा September बीत जाएगा, you will feel that yes, it is gone. October, November, December, so there will be a lot of pressure of prelims. So this is the time where you have to focus on your optional. And this paper one is key to get a rank because paper two is dicey. Even if you are writing very good, you cannot say that, yes, I will get 150. You can say you can get 130, 135. Yes, that can be assured with good amount of preparation. But 150 is something which is dicey in sociology paper two. But in paper one, yes, you can get 150. Yes, you can get repeatedly that if you have good preparation. So what is low hanging fruit should be first not taken. This is the approach I see in prelims also. You people are focusing on questions which are coming from uncertain areas. And everybody is saying you to focus on that. But that is a wrong approach. You have to first focus on the questions coming from certain areas. If questions are coming from that parliament chapter of Lakshmikant,
Why you aren't revising first that and focusing on DD Basu and different PDFs made by random Telegram channels? So you have to know the worth of your time, or else there will be a lots of issues. Nobody cares. Nobody cares if you fail in this examination. You have to take care and take command. Okay, I'm investing this much amount of energy because I want to raise alarms, and this is the work of mentor. Now, one by one, I will not discuss the question, and also the difficult questions. I will go a bit deeper. Okay, so this you have to now read once. Okay. Because what happened? Why I'm saying this? I know at least 10 students. What they did is that there are two sections, section A, section B. They attempted. Now you have to attempt at least one question, barring the compulsory question number and five, from each section. Okay, that is the compulsory thing. They circumvented this, and that costed them 1 year. Even instructions are important, so you have to read from here only. कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. There shouldn't be any if and but. अगर आपकी तरफ से गुंजाइश नहीं है and then also you are not able to clear, that's fine. But if you are doing mistakes and you think that some miracle will happen, that's nothing but wishful thinking. Wishful thinking is most dangerous. Okay, so you have to read this. आज ही जाके I will upload the original question paper. Read everything of this. Yes, it's important. Now, section A, this is now the question one is always compulsory. You need to remember this. This is a question given in test, told in repeated themes. The list, I told, no, common sense pe question banega. When I posted in Sociology Academy channel also the important themes, I posted this. This has come so many times. What is common sense and how are common knowledge and sociology related to each other? Explain. Now, if you are not able to answer this question as well, then you need to revisit your basics. Why? Because what is common sense? Common sense क्या होता है? You are sitting in a village, okay, and some uh, solar eclipse is happening. The person sitting beside you is saying you some stories that there was one demon and then demon fought together, and then there was a god, he came and he said that this should happen and then he resolved and all of this. So this is common sense because there is no proof of that. This is something based on your belief, your own prejudices, your own biases, your routine knowledge also. Now, routine knowledge is that we Indian people mostly eat with hands. So this is routine knowledge. ये routine knowledge है ना. आपको किसी ने आके टीच थोड़ी किया हाथ से खाओ. आपने देखा and you just you are now obeying that. Okay. If you were born in Britain, you would have eaten from knives and forks and this and that. Okay. So this is called as common sense. And कैसे common sense जो common knowledge है and sociology जो related है each other से. So this is what these micro sociologists or non-positivist fought for. They said you are telling that everything is falling from the sky. You functionalist people think that everything is falling from sky. Everything is decided by religion. Everything is decided by the social structure. So are human beings who have consciousness, are they fool? Do they don't have conscience? Are they passive matters? Like in chemistry lab, you take now potassium permanganate and you take hydrochloric acid, you mix it and they behave in a particular manner. Humans are not matters. Humans have conscience. If you will say anything to them, they will have some reaction. And that reaction will be based on their own set of intelligence and observation and social setup. So they fought for this. And that is how a correlation was established by these non-positivists. And different non-positivists have established that, firstly starting from the interpretivist school, giving the theory of social action, moving towards more radical schools, the phenomenologists, ethnomethodologists,
They started taking even more radical stance. They started talking about concepts like typification. You see everyday activity and you classify it, isn't it? You classify things also as good or bad, desirable or non desirable. The entire religion is based on do's and don'ts, nothing else. It's simply a codification of do's and don'ts, bounded by a miraculous power. So that if you have a fear of that miraculous power, to adhere to those do's and don'ts. Okay. So this is how they started establishing a correlation between a sociology subject which was portrayed by the founding fathers as social physics. Comte said it is the most sophisticated of all the sciences. क्योंकि ये सबके बाद में आया तो सबसे sophisticated है. It is taking cues from different subjects, so it is most advanced, it is most complete. And Durkheim said, if you are inculcating the commonsensical understanding here, you are marring the scientific investigation of society. उनकी भी गलती नहीं थी. Science was respected everywhere. Science at that time was respected like a religion. Europe was worshipping science, so they also wanted sociology to make science. This is what you need to understand, and you can frame a very beautiful answer if you understand the concepts. In your simple and subtle way, जैसे भी आप समझना चाहते हैं, if you will understand things, then you won't forget it. Okay, this is just a demonstration. You can now use any kind of example. Okay, any kind of example to just understand the concept. Now the second question. Second question is what is the relationship, similarities and differences? यहाँ पे क्लियर लिख दिया है यूपीएससी में, ठीक है? वरना द इंस्टीट्यूट्स यूज्ड टू से ये है तो यू हैव टू राइट दिस, ये है तो यू हैव टू राइट दिस. यूपीएससी सेड सी relationship, similarity and differences. I am saying you clearly between sociology and history in terms of their area of study and methodology. Clear है. You don't have to write everything. Area of study and methodology. Clear लिख दिया है. Now you shouldn't write everything. If you are writing everything, then you are not reading the demand of question. Demand of questions को understand करना is very very important. Okay, it's very very important. तो शुरुआत तो यही से करो आप लोग ना. Howard Baker has said that sociology is present history and history is past sociology. A very good quotation. You can start from this. तो एरिया क्या है? what does history studies? History is more about past studies कि ना why. पहले तो it was more about कि events हुए कब हुए. That was most appealing for historians. But then they also started studying what, when, how, why. So they widened the concepts. They also studied the past from the previously preview of just kingdoms. क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है. The most of the history that they were drawing were from the chronicles. The kings used to hire some writers and they used to say चलो ना मेरी हिस्ट्री लिखो. तो वो बेचारा, there is a king is saying that you have to write history, so he will be afraid. He will be thinking that अगर कुछ इधर उधर हो गया, he will straight away hang me. So he used to write everything hunky dory. Yeah. You must have read 6th 7th class की books of history previous books. In that it was written Ashoka made wells, planted trees, made this, made that. Just after embracing Buddhism, he became God. Okay, why? Because the Buddhist literatures have made to look like this. Ashoka before Buddhism was a fool, was a demon. Just after Kalinga War, embracing Buddhism, he became God. This is what is written in Deepavamsa and Mahavamsa. Sinhalese literature of Buddhism. So this is not the issue. But when they started now diving deep, archaeological evidences, numismatic, and they started doing research on that, and that took a lot of time. There was some critical perspective. And firstly, the history was mostly now researched by the left researchers, then right researchers also came. It became widened. सोशियोलॉजी का तो आपको पता है एरिया ऑफ स्टडी क्या है ना. सिमिलैरिटी डिफरेंसेस दोनों बताना है, ठीक है. मेथोडोलॉजी भी यू हैव टू टेल. एक और था
बोलते थे नोमैथेटिक एंड आइडियोग्राफी, ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आना, ठीक है? नोमैथेटिक एंड आइडियोग्राफी, आई एम गिविंग यू होमवर्क, पेन पेपर कीप इट विद यू। व्हाट इज नोमैथेटिक, व्हाट इज आइडियोग्राफिक, ओके, एंड हु इज व्हाट, सोशियोलॉजी क्या है और हिस्ट्री क्या है, विच इज व्हाट, ओके। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ये बिल्कुल बुक से दिया हुआ है और कुछ नहीं, बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, टू फॉलो द थिंग्स केयरफुली। मेथोडोलॉजी भी आपसे पूछी गई है, तो व्हाट इज द मेथोडोलॉजी adopted by historians? So they now firstly they are reading all the previous histories, जो chronologies होती है ना, chronicles होती है, the edicts are there, minor rock edicts, major rock edicts, the coinages, फिर archaeological evidences, this is the way they research. Sociologists are conducting studies जाके सोसाइटी में, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टडीज दे आर कंडक्टिंग, और आप डिटेल में लिख सकते हो। सिमिलैरिटी भी है, सोशियोलॉजिस्ट आल्सो डिपेंड ऑन हिस्ट्री, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग्स। कार्ल मार्क्स वाज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ इट, है ना? एवरीवन, मैक्स वेबर, एवरीवन हैज टेकन क्यू फ्रॉम हिस्ट्री, गूरे, एवरीवन। Okay, so history is something which everybody takes a cue, ना? But still there are field studies. So आपको difference और similarity दोनों बतानी है, and आपको ये भी conclude करने से पहले you have to say that yes, the differences were widen, अब कम होते जा रहे हैं subjects में, because अब वहाँ भी history में भी why, क्यों हुआ, औरंगजेब का आपने controversy, शिवाजी and छत्रपति शिवाजी महाराज and other different aspects you must have heard. So why का thing जो है it is increasing even in history, ठीक है? अब इससे simple what can be the question, what is the variable in social research, what are their different types, elaborate। अब इससे simple क्या हो सकता है ना? This is a very straightforward question, समझाया भी था and in discussion also, variable के बिना social research is not possible, it has something which is taking ना different inputs, ठीक है? आप जो डिफरेंट इनपुट्स ले रहे हो, देयर कैन नॉट बी एनी सोशल रिसर्च इफ देयर इज नॉट समथिंग व्हिच कैन टेक डिफरेंट इनपुट्स, है ना? आप वेरी करोगे सोशल सिस्टम में कास्ट को, जेंडर को, एंड यू विल वेरी डिफरेंट पैरामीटर्स। तो जब तक वेरिएबल नहीं है, हाउ यू विल कंडक्ट रिसर्च? फिर मैंने बताए भी थे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इट शुड बी फिनिश्ड इन 7 मिनट्स टाइम है, तो 6 मिनट्स में फिनिश करो, सो दैट इफ देयर इज सम क्वेश्चन व्हिच इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वहां पे यू हैव टाइम, ठीक है? ये है थोड़ा सा ना, ये है थोड़ा सा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग व्हिच इज अप्लाइड, थोड़ा सा, तो यहाँ 1 मिनट इफ यू वुड हैव सेव्ड, तो यहाँ 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। जैसे द क्वेश्चन इज, कैन मर्टन्स रेफरेंस ग्रुप थ्योरी बी रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी मेकिंग डिजिटल वर्ल्ड? आइडेंटिटी मेकिंग पे आई हैड पोस्टेड इन करंट सीरीज ऑल्सो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आइडेंटिटी मेकिंग होती क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटी? द मोमेंट यू आर बॉर्न, you are given some identity. First of all, your gender, ठीक है? जेंडर इज सोसाइटल मेड, ये कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टूडेंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग सबको पता है, ठीक है? योर जेंडर, देन योर नेम, योर कुला, योर कास्ट, योर लैंग्वेज, योर स्टेट, योर नेशनैलिटी, योर कॉन्टिनेंट, everything is decided ना, you are given an identity that is known as primordial identity, ठीक है? Then you grow up, you study, you achieve things from merit, then you make an identity which is not ascriptive, which is achievement based. Now social media is making your identity how? You all must be following some or other person on social media based on your different interests. Like your religious ideas are shaped by social media personality. Some influencer will be there. You must have seen a very small kid. Na, what is his name? He's doing some random activities, sometimes very funny as well. Not having any kind of rationality. I am forgetting his name. And he is shaping the religious ideas and your how you should worship. There are so many religious godmen who are actively acting through reels, shaping your identity, shaping your mentality about how you will behave in terms of your worship, in terms of your spirituality. They are reshaping your identity. Same goes with food. People are nowadays seeing a food blogger.
food blogger has promoted a particular restaurant. If you will go to a particular city, you will go to that particular restaurant and you will try to eat that. Shaping your identity, everything is shaped. Your, it is polarizing everything. It is shaping your identity not only like um, a loose manner. It is shaping it in a very orthodox manner. That is very difficult to change also. Okay, you have to when you it is said explain, you will touch this nuances as well. है ना? आप ऊपर ऊपर सुपरफिशियल चीजें नहीं लिखोगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देके खत्म कर दोगे. पहले तो यू विल एक्सप्लेन रेफरेंस ग्रुप थ्योरी होती क्या है मर्टन की. ओके, एंड देन यू विल कम टू दीज पॉइंट्स, एंड देन यू विल आल्सो डेल इनटू द क्रिटिकल एस्पेक्ट, एंड देन यू विल कंक्लूड और एग्जांपल देने हैं. अदरवाइज यू वोंट गेट गुड मार्क्स इन दिस. एक फ्लो है, एक फ्लो यू हैव टू मेंटेन. आई हैड डिस्कस्ड दिस फॉर 1-to-1 स्टूडेंट्स एज वेल. ये एंटीथेसिस दो. इफ यू आर गिविंग एंटीथेसिस दैट मींस कोई ये स्टेटमेंट है, इसका काउंटर पर्सपेक्टिव भी तो होगा. इसका काउंटर पर्सपेक्टिव क्या है? इज इट शेपिंग ना, इज इट मेकिंग रेफरेंस ग्रुप, या फिर वो रेफरेंस ग्रुप पहले से बस वो स्ट्रांग हो रहा है. यू आर लाइकिंग फुटबॉल, ठीक है, तब वो आप जाके यू आर लाइकिंग फुटबॉल पेजेस सोशल मीडिया पे. तो फुटबॉल तो पहले से लाइक करते थे, फुटबॉलर यू यूज टू लाइक मैसी बिफोर एज वेल, वो स्ट्रांग हो गया, है ना? थोड़ा-सा ये भी है। जैसे एक चीज़ है सेड दैट पोलराइज़ेशन हो गया। क्या पोलराइज़ेशन हो गई या पोलराइज़ेशन की विजिबिलिटी बढ़ गई? दीज़ आर 2 कॉन्सेप्ट्स। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट विजिबिलिटी बढ़ना, है ना? विजिबिलिटी बिकॉज़ सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज़ विजिबल। प्रीवियसली एवरीथिंग वाज़ अंडर द कारपेट। कम्युनल राइट्स तो पहले भी हो रहे थे। कम्युनल राइट्स वर हैपनिंग प्रीवियसली आल्सो। कितने बड़े-बड़े मैसिव कम्युनल राइट्स हुए, कहाँ सोशल मीडिया था उस टाइम पे? तो अंडर द कारपेट था। सोशल मीडिया हैज़ इंक्रीज़्ड द विजिबिलिटी। बात को आप धीरे-धीरे समझोगे ना, तो देन यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर. इफ यू विल जस्ट क्रैम थिंग्स, तो फिर वहां पे जाके यू वोंट बी एबल टू रेसिप्रोकेट वट एवर यू हैव अंडरस्टूड. तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में इन इजी लैंग्वेज यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ये तो फेमिनिस्ट ने बोला ही है ना. आई सेड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव लिख के आना, तो आई हैड स्ट्रेस्ड एवरीवन ना, एवरी स्टूडेंट टू रीड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अच्छे से. क्योंकि सोशियोलॉजी पेपर 1 आप पढ़ाओ, तो आपको तो शुरू में सारे जितने 6 के 6 थिंकर हैं, everybody is male, and the perspectives which are given are so gender blind. जेंडर की बात ही नहीं हो रही है. until unless these Sylvia Walby and Anne Oakley and Sherry Ortner and all these people came. Social stratification theories, you see Davis and Murray, क्या कॉन्सेप्ट दिया है वो. ये सेइंग कि वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए कि जो जो अचीवमेंट बेस्ड है, जो जिसके लायक है वो उसको वो पोस्ट मिल रही है, वो काम मिल रहा है. अरे तो फीमेल लायक नहीं है क्या टू टेक अप द लीडरशिप? Is she not able to hold the family? Without your mother, can the family be holded? Can you be nurtured? Isn't it the biggest leadership role? Isn't it the biggest proof? Huh? They are reshaping the entire generation. The current literacy or educational achievement of nowadays girls is because of the sacrifices and leadership of mothers of our generation. तो डेविस एंड मूरे क्या कॉन्सेप्ट बता रहा है ना? तो ये जो सर्टिफिकेशन की थ्योरीज है स्पेसिफिकली फंक्शनलिस्ट, इवन मार्क्स, मार्क्स तो हर चीज को द मार्क्सिस्ट हर चीज को ही जस्ट रिड्यूसेस टू इकोनॉमी. वो तो न्यू मार्क्सिस्ट आए तो उन्होंने कल्चरल एस्पेक्ट एंड डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स दे डेल्ट. तो है तो पूरा ब्लाइंड है, आपको सब कुछ बताना है इसमें, है ना? फिर कैसे उसको वाइडन किया गया कॉन्सेप्ट को, हाउ दिस वाज वाइडन बाय फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव देख के. मेलविन क्यूमिन ने भी क्रिटिसाइज किया. यू हैव टू राइट एवरीथिंग. थोड़े एग्जांपल्स भी डालना, है ना? पर्सपेक्टिव आपको डालना है, थोड़े एग्जांपल्स डालने पड़ेंगे यहाँ पे. एग्जांपल जब आप डालोगे तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में ना फेमिनाइजेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, पिंक कॉलराइजेशन. तो पिंक कॉलराइजेशन का जो ये कॉन्सेप्ट ही है जिसको नजरअंदाज किया, दैट वाज ओवरलुक्ड बाय द अर्लियर थिंकर्स. ये क्यों हो रहा है कि द women's आर suited फॉर पर्टिकुलर जॉब्स, men आर suited फॉर ऑल जॉब्स. ठीक है, सो एग्जांपल्स डालो वहां पे, है ना?
फिर कैसे ये एक फाउंडेशन है, हाउ दिस इज गेटिंग ब्रोकन, कैसे पर्सपेक्टिव सबअल्टर ने भी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को ले लिया है, हाउ द नियो मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट्स इन मार्क्सिज्म और जो स्ट्रेटिफिकेशन कॉन्सेप्ट एंड जेंडर इज गेटिंग मिक्स्ड। थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें करो एंड देन कंक्लूड इट, यू विल गेट अ वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, यू हैव टू शो डेप्थ। डेप्थ कब आएगा? व्हेन यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स, रिवाइज थिंग्स, उसको यूज करोगे इन राइटिंग। नोट्स बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, 500 1000 2000 3000 पेजेस, वीडियोस आफ्टर वीडियोस ना, इतने सारे टेलीग्राम पे फ्री वीडियोस हैं, देखते जाओ, क्या होगा उससे? नथिंग विल हैपन, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, वही वीडियो देखो which you are not able to understand by yourself, है ना? So that will fasten the process. So the concept is too easy. Why you are wasting time by watching 3 hours video? So I तो never took any kind of coaching for sociology option, never. ठीक है, yes, I took test series and test series are important. I took and those test series people, I used to ask them doubts and connect with them and take advice from them. Yes, it's important. Otherwise, you will not be able to gauge what is important, what is not important. Because आप देखो ना, एक सोशियोलॉजी पेपर वन का सिलेबस खत्म कराने के लिए these people take first तो ना 3 months। ठीक है, स्लो 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 स्लो, एक क्लास 3 hours की होती है, 2 घंटे फालतू की चीजें होती हैं, द थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड, कुछ कुछ स्टोरीज। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑनर योर टाइम। ऑनलाइन में ले रहे हो तो 2x पे देखो। ठीक है, फटाफट खत्म करो, रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे समझना पड़ेगा जैसे आई एम सेइंग, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग यू नीड। कितना आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉजिटिविज्म, क्रिटिकली एनालाइज द मेजर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट इट। पॉजिटिविज्म को डिफाइन करो, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में सारे नॉन पॉजिटिविस्ट आ गए, एंड यू विल थ्रो एवरीवन अच्छे से एकदम आर्गुमेंट बना के, थॉमस लिपमैन, पीटर बर्जर, अल्फ्रेड सूज, सबको ले आओ यहाँ पे, है ना, एवरीबॉडी, फेमिनिस्ट स्कॉलर्स भी लाओ। ट्राई टू शो डाइवर्सिटी इंस्टीड ऑफ राइटिंग 5 thinkers of one school, write different schools के थिंकर, सबल्टन, न्यू मार्क्सिस्ट, न्यू फंक्शनलिस्ट, है ना, जिसे हम बोलते भी हैं डिफरेंट डिफरेंट शिकागो स्कूल्स के, थोड़े थोड़े लाओ तो, हाँ, पोस्ट मॉडर्निस्ट, थोड़ी डाइवर्सिटी, डाइवर्स एनालिसिस विल गिव यू गुड मार्क्स। ठीक है, दिस इज द रेसिपी टू स्कोर 270 प्लस, otherwise it becomes very very difficult, everybody is writing from those similar kinds of resources। At the end of the day, every coaching institutes who are making notes or any book is being made from only 2 3 books. One is the IGNU source. Second is that Orange Orlumbus, Blue Orlumbus. Very few are following. Only 2 3 units methodology etc. are important. And in paper two, there are few books, no, which everybody is taking things from there and making like a small guide. So resources are same. What will make difference is how you are able to reciprocate it in the limited time with diversity. तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब इससे क्या मतलब सीधा क्वेश्चन आ सकता है ना, हाउ कैन बी मोर सिंपलर क्वेश्चन देन दिस। आई होप कार्ल मार्क्स वगैरह तो अच्छे से पढ़ा होगा आपने। देखो, कार्ल मार्क्स इज ना लाइक समथिंग व्हिच कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। कार्ल मार्क्स को तो जो लोग हेट भी करते हैं वो भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Karl Marx is very important if you want to write any good answer in work and economic life. Karl Marx is very important if you want to criticize capitalism in any question. Karl Marx is very important if you want to criticize these functionalists, criticize the religion. है ना? कहीं का भी critics देना है, Karl Marx is very very important, and this is the main concept of Karl Marx, historical materialism। आज के टाइम में तो आप देखो ना, कंटेम्परेरी सोसाइटी में तो सब तो मटेरियल ड्रिवन हो गया ना। द कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हिच आई हैड डिस्कस्ड, हाइपरलैप्स कंज्यूमरिज्म। सो यू आर बाइंग एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जस्ट टू शोकेस दैट यू आर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास। आईफोन ले रहे हैं लोग, अरे आई हैव सीन पीपल हु डू नॉट हैव 5,000 10,000 का मंथली इनकम टेकिंग loans etc for iPhone। So what is the use of it? Will you be able to use the features of iPhone? Do you have those kinds of need of that heavy RAM and those apps? Are you able to use anything else other than social media platforms and camera?
what these now Apple provides you the built-in apps. Are you able to use it? No. So why you are wasting time just to show up? There is a hyperlapse consumerism. एक टैप दबाओ, आइटम्स आ जाते हैं. You buy and then you think कैसे यूज करना है. तो पूरा एलिनेशन से लेकर सब कुछ जो मतलब द सोसाइटी इज गेटिंग नाउ डिवाइडेड बेस्ड ऑन द मटीरियल एस्पेक्ट्स अ लॉट मोर. आज के टाइम में इफ यू सी द इंडियन सोसाइटी, द मटीरियल एस्पेक्ट्स आर डिसाइडिंग एवरीथिंग. प्रीवियसली इट वाज मोर अबाउट फ्यूडल. किसी के पास लैंड है, कोई कास्ट में ऊपर है, किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है, तो दे वर कंसिडर्ड एज एलिट. नाउ इट इज ऑल अबाउट किसके पास लंबी गाड़ी है, हु हैव बिग कार, हु हैव बिग हाउस. Yeah, people are not saying that I'm coming from car. They're saying I'm coming from BMW. ठीक है. People are not saying that they are engineer. They will say I'm working in Microsoft. Everything is becoming what Marx said in historical materialism. कि सब तो यह डिसाइड कर रहा है. एंड एक तरह का पॉपराइजेशन, एक तरह का डिफरेंशिएशन इज हैपनिंग बेस्ड ऑन द चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन. जो हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन इन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा है आज के टाइम में? इट इज बिकमिंग इंक्रीजली डिजिटलाइज. इंटरनेट इज ड्राइविंग एवरीथिंग. इंटरनेट इज ड्राइविंग योर पॉलिटिकल ओपिनियंस. डेमोक्रेसी स्वे हो रही है. इट वाज आवर करंट प्राइम मिनिस्टर हु वाज वेरी वेरी अर्ली टू यूटिलाइज द फेसबुक, एंड दैट प्लेड अ मैसिव रोल इन हिम बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो आप समझो तो कैसे ये कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का, इट्स एवर इंपॉर्टेंट, है ना? तो एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है, चीजें बतानी है थोड़ी. और उसके बाद यू ऑल्सो हैव टू से कि हाँ, इंडिया सोसाइटी में एंटीथेसिस देते समय दैट यस कल्चर ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. है ना? कार्ल पॉपर बोला था कि ये इकोनॉमिक जो रिडक्शनिज्म है, ये आइडियाज को इग्नोर करना होगा. और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो डिसाइड करते हैं चीजें. तो बारनडॉर्फ भी आपने पढ़ा होगा. सो इसने बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट नॉट ओनली रूटेड विद द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर. जो कॉन्फ्लिक्ट आज के टाइम में आपको दिखता है, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स, बट ऑल्सो इन डिफरेंशियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर. जैसे हमारा कास्ट सिस्टम है, तो डिफरेंशियल अथॉरिटी स्ट्रक्चर ही तो है ना? बहुत सारी चीजें थी. नियो मार्क्सिस्ट अल्थुजर ने भी बोला था. ठीक है. नियो मार्क्सिस्ट क्या थे? नियो मार्क्सिस्ट थे हु ट्राई टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ मार्क्सिज्म. है ना? उन्होंने बोला कल्चर को भी दे इनकलकेटेड बिकॉज मार्क्स हैड सिंपली नेगेटेड देम. ठीक है. क्योंकि मार्क्स बोलता था कैपिटलिज्म इज अ बुर्जुआ मोनोपोली. ठीक है. बट ब्रेवरमैन बोलता नहीं, नाउ प्रोफेशनल कैपिटलिज्म इज देयर. प्रोफेशनल कैपिटलिज्म कैसे आप देखोगे ना, हाई डिमांड फॉर मैनेजर्स को कैसे बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं आजकल, सीईओस को, व्हाइट कॉलर पीपल. यू सी देर आर ना कितना $100 million का देर हैज बीन अ पैकेज गिवन बाय ओपन एआई टू अ व्हाइट कॉलर पर्सन. सुंदर पिचाई इज अ बिलियनियर. So these are the things. You have to widen the concepts, widen the things, and then you have to talk about the concept. 20 नंबर का है, ज्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, बट डाइवर्सिटी लानी है. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि रिलायबिलिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबिलिटी इन सोशल साइंस रिसर्च. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? तो ये फंक्शनलिस्ट का पूरा आप लिख दोगे, क्योंकि उन्होंने ही इसकी इंपॉर्टेंस को रखा था. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, थोड़े बहुत एग्जांपल दे दोगे. जैसे सेंसस का एग्जांपल दे दो, उसकी रिलायबिलिटी होना कैसे इट इज इंपॉर्टेंट. कोई भी सोशल रिसर्च या एनएफएचएस है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है. फिर आप रिलायबिलिटी के बियॉन्ड जाना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो एंटीथेसिस के तौर पे दे देना ऑफ ना जो नॉन पॉजिटिविस्ट है उसके लिए. थोड़ा एग्जांपल्स डालो ना. एनएफएचएस की रिपोर्ट में रिलायबिलिटी नहीं होगी तो हाउ इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड अदर थिंग्स. तो ऐसे थोड़ा सा यू हैव टू एक्सट्रापोलेट थिंग्स. यू हैव टू एग्जांपल्स, कहते हैं ना, फ्रॉम वेयर एग्जांपल्स विल कम. ठीक है. तो मॉडल आंसर में देयर आर एग्जांपल्स, जनरल ऑब्जर्वेशंस ना. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू राइट एग्जांपल्स. इफ यू आर जस्ट क्रैमिंग इट, बस पकड़ा और ये रट्टा मार दिया, ठीक है, या फिर 3-4 पेन से बस वो नोट्स बना लिए लाइब्रेरी में बैठ के, तो फिर नहीं होगा, है ना? दीज आर द मेथड्स व्हिच आर अडॉप्टेड बाय द हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दीज आर द श्योर शॉर्ट रूट टू फेल इन दिस एग्जामिनेशन. ठीक है. समझना है बिल्कुल हर चीज को. ये आपने पढ़ा है. थर्ड ए, माइक ऑन करके कोई
बताओ कि आपने पढ़ा है कि नहीं है? कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन अप्रोच। एनीवन? एनीवन? ये अमृत पढ़ा आप लोग? नो वन हैज स्टडीड? कैपेबिलिटी जो डेप्रिवेशन अप्रोच है तो अमर सिंह की है ना, डिफाइंस पॉवर्टी नॉट बाय लैक ऑफ इनकम बट डेप्रिवेशन ऑफ फंडामेंटल कैपेबिलिटीज, है ना? तो पॉवर्टी क्यों हो रही है? ठीक है, पॉवर्टी इसलिए नहीं हो रही है कि आपके पास जो है इनकम नहीं है। पॉवर्टी इसलिए भी हो रही है क्योंकि अपने पोटेंशियल को आप एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, व्हाई? बिकॉज हो सकता है आपका हेल्थ अच्छा नहीं हो। व्हाई? बिकॉज आपको एजुकेशन ना मिली हो। व्हाई? आपका लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो या आपको सेक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड कर दिया गया हो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका द कैपिटल कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन अप्रोच। अब ये दूसरा क्या है? वन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इवन इन दी GS2, सोशल कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, व्हाट इज सोशल कैपिटल? सोशल कैपिटल है द नेटवर्क्स जो आप बनाते हो, है ना, द रिलेशनशिप दैट यू मेक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज सोशल कैपिटल, जो यूटिलाइज करते हो आप अपने ग्रोथ के लिए। दिस इज कॉल्ड एज द सोशल कैपिटल अप्रोच। ठीक है, तो अब ये बोलना क्या चाह रहा है? दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि यू डोंट हैव सोशल कैपिटल ना, सोसाइटी में नेटवर्क नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, रेसिप्रोसिटी नहीं है, कनेक्शंस नहीं है। व्हाई? बिकॉज यू बिलोंग टू अ marginalized community. You may be a woman, you don't have a social network. You may be from a minority community, marginalized हो. You may be belonging to third gender. You may be belonging to specially abled community. जिनके लिए जो social capital है, because the people who are holding the power या holding the different aspects of authority do not belong to your community. ठीक है, तो this approach argues that the exclusion फ्रॉम की इंफॉर्मेशन या इनफॉर्मल जो क्रेडिट है या सपोर्ट सिस्टम है, इसके वजह से एक वीक और नॉन एग्जिस्टेंट कम्युनिटी टाइज बनती है। इट हिंडर्स इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू एक्सेस अपॉर्चुनिटी या रिसोर्सेस। इससे इकोनॉमिक हार्डशिप डीपन हो जाती है एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स हेल्थ एंड वेलबींग। इट एक्ट्स लाइक अ वीसीएस साइकिल, एक वीसीएस साइकिल हो जाता है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क एक्सक्लूजन, द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, द लिमिटेड एक्सेस टू सपोर्ट और द परपेचुएशन ऑफ मार्जिनलाइजेशन परपेचुएट कर दी जाती है। ठीक है, तो यही इन्होंने पूछा था। यू हैव टू गिव द एग्जांपल। क्रोनिक पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करने में ये दोनों चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है एंड हाउ लेटर आप ये भी बोल सकते हो कि कैसे ये इंटर रिलेटेड भी हैं चीजें। ठीक है, कैपेबिलिटी नहीं डेवलप हो पाती है क्योंकि आपके पास सोशल कैपिटल नहीं होता, तो दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एज वेल। तो आपको एक्सप्लेनेशन जब आप एनालिसिस करोगे तो यू हैव टू कोरिलेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स एज वेल। ठीक है, ये देख रहे हो GS2 में पूछा। ठीक है, कि एंटी नेशनल उसको समझते हैं इंस्टीड ऑफ की नॉन स्टेट एक्टर। यहाँ भी ये क्वेश्चन है, आर प्रेशर ग्रुप्स अ थ्रेट टू और अ नेसेसरी एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। एक ना मैंने एक बार बोला था ये चीज ना, कई बारी जो जनरल स्टडीज में चीजें आती है ना, दैट पॉइंट्स आउट कि सोशियोलॉजी में भी कुछ चीजें उस एस्पेक्ट में आएंगी जो सोशल जस्टिस और सोसाइटी से रिलेटेड है। तो रिवाइज कर लेना नेक्स्ट ईयर ये चीज ना, एक एक दिखेगा, एक दो क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े मिलते जुलते रहेंगे। सो आपको तो इसको देखिए, है ना, थ्रेट तो है ही नहीं किसी भी लिहाज से। आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, आपको प्रेशर ग्रुप की थ्योरी समझानी पड़ेगी, है ना, प्रेशर ग्रुप होता क्या है एंड द थिंकर्स दैट हैव सपोर्टेड द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप। आप देखो ना, द कांसेप्ट व्हिच वाज गिवन बाय रॉबर्ट डाल,
रॉबर्ट आल्वर्स देखो, डेमोक्रेसी तब तक नहीं है जब तक कि वो लोकलाइज्ड नहीं है, एंड लोकलाइज्ड डेमोक्रेसी तब होगी जब देयर विल बी प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओज, हर कोई तो कैनॉट गो एंड कंटेस्ट द इलेक्शन। नो, एवरीबॉडी डजंट हैव इनफ रिसोर्सेज और टाइम टू कंटेस्ट इलेक्शन, सब थोड़ी कर सकते हैं। सो देन व्हाट, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, प्रेशर ग्रुप्स हों, वॉचडॉग की तरह काम करें। बट इनको क्यों समझा जाता, व्हाई अ थ्रेट टू द democracy by state? Often because they criticize, because they criticize the government, because they provide the alternate economic models, because there are now accusations of lack of accountability and misuse of funds or misuse of FCRA regulation। आईबी की रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं जो आप थोड़ा बता सकते हो, है ना? थोड़ा सा इसमें यू हैव टू ऑल्सो से कि ना, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी इन कंट्रीज, प्रीमोडियल कंट्रीज, जो फ्यूडल कंट्रीज हैं वहां पे, दे आर बेस्ड ऑन प्रीमोडियल आइडेंटिटीज। ओके, दे आर ऑल्सो ऑफन इग्नोरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स, ठीक है, ऑफन। इवन दो एक और फेनोमेना है एनजीओआइजेशन ऑफ विमेन मूवमेंट, तो विमेन मूवमेंट जो आजकल हो रही है वो दोज आर कंडक्टेड बाय एनजीओस, बट यहाँ प्रेशर ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है? तो यू हैव टू स्टिक टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? इलस्ट्रेशंस हैं तो एग्जांपल्स आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है? थ्रेट कैसे नहीं है तो एग्जांपल्स मैंने जीएस2 में भी डिस्कस किए थे। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स हाउ प्रेशर ग्रुप्स आर डीपनिंग द डेमोक्रेसी। चाहे कुछ भी आप उठा के देख लो ना, चाहे वो डेमोक्रेसी को लेकर जो वॉचडॉग्स हैं, चाहे जो डिफरेंट डिफरेंट आंदोलन हुए फॉर आरटीआईज एक्सेट्रा, एवरीथिंग वाज डन बाय द प्रेशर ग्रुप्स ओनली, एंड प्रेशर ग्रुप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब देखो ना इंडिया के इस करप्शन ने जो मूवमेंट किया था, लोकपाल एंड दिस एंड दैट, और अभी भी होता रहता है एनवायरनमेंट में, हर चीज में। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको इलस्ट्रेशंस मतलब एग्जांपल्स आपको देने पड़ेंगे। अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपोथेसिस, क्रिटिकली एवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशल रिसर्च। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ही इधर उधर नहीं होने चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छे से यू हैव टू राइट। अरे ये मैंने सोशियोलॉजी एकेडमी में भी लिखा था, करंट सीरीज पे भी कवर किया था। गिव एन अकाउंट ऑफ द रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ मैरिज इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस क्या थी? ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी ना, एक तरह की हाइपोगैमस मैरिज होती थी। द स्टेटस ऑफ द मैन यूज्ड टू बी कंपैरेटिवली इन प्रीमोडियल सेंस हायर, टाउरी सिस्टम होता था, ठीक है? कन्यादान एंड व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स वर देयर, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी, अंदर ही एंडोगैमस मैरिजेस होती थी, विद इन विलेज मैरिजेस नहीं होती थी। तो ये क्या थी? ये पुराने ट्रेंड्स हो गए। अभी क्या हो रहा है, कैसे ट्रेंड्स बदल रहे हैं? अभी तो सेम सेक्स मैरिजेस भी हो रहे हैं, है ना? अभी तो इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी हो रहे हैं, है ना? द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस हाइपोगैमस, ये चीजें भी चेंज हो रही हैं। अब यू विल सी दैट देयर आर ट्रैड हस्बैंड, जो कॉन्सेप्ट मैंने डाला था सोशियोलॉजी करंट, ऐसे यूज करना, यू हैव टू यूज इट, एंड टू यूज इट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। यू कैन नॉट क्रैम 40 चीजें करंट सीरीज में दी हैं, तो जस्ट अंडरस्टैंड 20। अंडरस्टैंड, सब नहीं कवर करना, बट अंडरस्टैंड करो, और उसको अप्लाई तभी हो पाएगा व्हेन यू विल अंडरस्टैंड इट, ठीक है? तो वो सब चीज़ें बताओगे, बट ये भी बताओगे कि इन इंडियन सोसाइटी थिंग्स आर आल्सो गेटिंग ना इन कंटिन्यूटी आल्सो। डाउरी अभी भी है ना? अभी भी 2 कन्यादान कॉन्सेप्ट्स और वो सारी चीज़ें, और ना मैरिज के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ इट इज सीन एज़ समथिंग एज़ प्राइड, है ना? इंटरकास्ट में अभी भी ऑनर किलिंग्स होती हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन पुट अप, है ना? और जो नए-नए फॉर्म्स ऑफ मैरिज हो भी रहे हैं, उनको उतनी रिकॉग्निशन नहीं है अभी भी सोसाइटी में। ऑल दीज़ थिंग्स यू कैन से ना, हाउ इट इज़ गेटिंग मोर ऑफ अ लोकलाइज्ड इन अपर मिडल क्लास एंड अर्बन एलिट्स और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ये एक्सप्लेन कर देना। ओके? तो ये ही बोल रहा था मैं, कंपैरिजन का क्वेश्चन है। व्हाट वुड यू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन द एलीट थ्योरीज ऑफ मॉस्का, माइकल्स, पारेटो? एंड इंसिडेंटली there is one of my student in sociology 1-to-1 मेंस 2025 के लिए, he told me मेंस, जीएस एंड ऑप्शनल के बीच में, सर इसका ये दोनों का डिफरेंस जो है ना, मॉस्का एंड पारेटो का, इसका ऑडियो भेज दो। एंड सो आई हैड सेंट हिम द ऑडियो। ठीक है, चलो माइकल्स तो ऐसे ही अलग है, इनके दोनों का डिफरेंस भेज दो। सो आई हैड द डिफरेंस एंड दिस क्वेश्चन केम, ठीक है? तो देयर आर, दीज आर दी फाउंडेशंस, है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा, मॉस्का
पारीटो के बीच में क्या डिफरेंस है, कोई बहुत बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं है, दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। एंड 3 दे दिए डिफरेंस के लिए, तो आपके पास हो सकता है स्पेस की कमी हो, तो राइट इट विद अ टेबुलर फॉर्मेट। डोंट ट्राई टू ओवर एक्सप्लेन इट। इफ यू विल ट्राई टू ओवर एक्सप्लेन इट, यू विल फाइंड दैट यू डोंट हैव इनफ स्पेस, इनफ स्पेस की कमी हो जाएगी आपको। इसलिए यू हैव टू लर्न ऑल्सो ना द आर्ट ऑफ स्पेस मैनेजमेंट, एंड देर आर ओनली 3 पेजेस। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट, क्रिटिकली एनालाइज दी सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर से क्वेश्चन ना आए, तो आई डोंट थिंक कोई भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर वुड बी कंप्लीट। एनी ईयर, शो मी एनी ईयर व्हेन देयर इज नॉट अ क्वेश्चन ऑन इनफॉर्मल सेक्टर। नहीं होगा पेपर 1 में तो पेपर 2 में इट विल कम, बट आएगा जरूर। सो क्रिटिकली एनालाइज द सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी। कैसे ये इंपॉर्टेंट होता है, पहले तो की थाट से शुरू करो। द की थाट हैज गिवन द इनफॉर्मल सेक्टर, क्या डेफिनेशन दिया था, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपको कम्पीट करना है ना डेवलप्ड कंट्री से, और आप कैसे कर सकते हो, तो आप लेबर से तो कम्पीट कर सकते हो, जिसकी वजह से द इनपुट कॉस्ट इज गेटिंग रिड्यूस। आपके पास बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, तो आप उसको यूटिलाइज भी कर रहे हो ना, तो क्यों नीडेड है ना, जो नीड ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, दैट यू हैव टू शो। और यहाँ पे देखो, आप लेबर इंटेंसिव वर्क्स होते हैं, जैसे टेक्सटाइल है, सो इट नीड्स ना, इट नीड्स इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मलाइजेशन होते ही द कॉस्ट ऑफ फॉर्मलाइजेशन, बिकॉज आर एक्सपोर्ट इज ऑल्सो egalitarian. The MSME sectors are contributing a lot more compared to the big multinational companies in terms of export in manufacturing sector. मैं services की बात नहीं कर रहा। So in manufacturing sector, their role is very, very immense. Also, informal economies are employing a lot more women, है ना, lot more marginalized community. तो वो भी आपको बताना, बट फिर इसके डाउनसाइड्स भी आपको थोड़े से डिस्कस करने हैं, है ना, क्योंकि क्रिटिकली एनालाइज है। आपको बताना ये कैसे, मतलब कंट्रीज लाइक इंडिया में कैसे ये लेबर राइट्स, कैसे ये ना जेंडर एक्सप्लॉयटेशन, है ना, आप देखोगे ना सारी केस स्टडीज वगैरह भी हैं इसमें, जो आप लिख सकते हो। तो आप इसको फ्लिप साइड दोगे एंड देन यू विल कंक्लूड कि कैसे जरूरी है कि यहाँ पे भी एक सॉफ्ट टच रेगुलेशन हो, और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, क्योंकि सोशल सेक्टर सिक्योरिटी से लेकर कुछ नहीं थी, गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन स्कीम्स। वो भी थोड़ा सा पासिंग रिमार्क देके ही इस क्वेश्चन को यू हैव टू एंड। ठीक है, सेक्शन बी आने से पहले आप लोग थोड़ा पक गए होगे, है ना, तो थोड़ा 2 मिनट रेस्ट ले लो, फिर हम थोड़ा आगे करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 2 मिनट। Tanu, you saw the paper? Ravi Reddy, have you seen the question paper before? You can no, on your mic and say. Rahul, Yes, sir, I have seen sir before. okay. What was your observation? Para Lakshmi, have you seen the question paper before? Yes, sir, I have seen. What was your observation?
Did you found the paper easy or difficult? Sir, it's not so difficult. It's manageable, sir. Okay. Okay, so let's start the section B. So the first question is, in what way is the scope of sociology unique? Explain. How it is unique. देखो, uniqueness is in the completeness of the study of society. So any of these other social sciences are focusing on one aspect of society, but not studying the society in complete aspect. Polity, if the no political science, it will be mostly about the democracy, the elections, the process of mobilization. Anthropology will be more concerned about the biological aspect, the cultural aspects. Sociology will be having not taking cue from even the anthropological understanding. It will even take cue from the other subjects understanding, but try to study everything in a very comprehensive manner. That makes the scope of sociology unique, and also it is very dynamic. Now the sociology's scope is ever changing. इसीलिए आप पेपर भी देखो ना, द सोशियोलॉजी क्वेश्चन पेपर ऑफ यूपीएससी, it is so dynamic. Anthropology का क्वेश्चन पेपर उठाओ, it is more or less on a similar themes and lines, but sociology themes are changing because ये dynamic है. We were studying 10 years before about the aspects of the computers. कंप्यूटर से क्या चेंजेस हो रहे हैं, इंटरनेट से क्या हो रही हैं, फिर एक सोशल मीडिया आ गई, फेसबुक केम, मोबाइल केम, नाउ रील्स केम, and technology is changing, AI came, हो सकता है कुछ और आ जाए. तो sociology has to study all the dynamism. That makes it unique. And also sociology is giving the scope of studying any theory from any angle. आप subaltern perspective से देख सकते हो, आप gender dimension से feminist perspective से देख सकते हो, post modernist way से देख सकते हो. तो scope है sociology का, इसीलिए यूनिक है. आप शुरू भी कर सकते हो यहाँ पे द फाउंडिंग फादर ने जो बोला था, एंड देन यू गिव द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, एग्जाम्पल्स, चीजें थोड़ा एक्सप्लेन करो, है ना. सोशल मीडिया का पर्सपेक्टिव डालो, टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव डालो, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन में कैसे हाउ द सोसाइटी चेंज्ड इवॉल्व, है ना. डेवलपमेंट ऑफ द न्यू मिडिल क्लास ही देख लो, हाउ दे आर स्टडिंग ना. पहले मिडिल क्लास, दे आर स्टडिंग न्यू मिडिल क्लास. New middle class are those जो ग्लोबलाइजेशन से द इन्वेस्टमेंट केम एंड द एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग वगैरह में जो इंक्रीज, जो बूम आया, उससे जो नई मिडिल क्लास जनरेट हुई, उसके बारे में भी अंडरस्टैंड. तो दिस मेक्स इट द डायनामिज्म, द कंप्लीटनेस, एंड टेकिंग क्यू फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड देन मेकिंग इट इट्स ओन is something. And plus अब माइक्रो भी पढ़ते हो, यू आर स्टडिंग अबाउट अ सोशल एक्शन, यू आर ऑल्सो स्टडिंग अबाउट अ कंट्री, you're also studying about the entire humanity. तो अब तो सब कुछ कितना कितना नुएस्ट स्कोप है. सो एवरीथिंग यू हैव टू से, सब कुछ यू हैव टू put into the table, you will get a very good marks. Question second, does the structural functionalist perspective on social stratification promote a status quo? देखो आ रहा है, ये डेविस एंड मूरे के पीछे पड़ गए हैं, ठीक है. डेविस एंड मूरे स्टेटस क्वेस्ट है, तो आप उसको हाँ ये तो है ही, स्टेटस क्विज्म को कर ही रहे हैं वो. एंड देन यू विल नॉट यूज ऑल द थिंकर्स, ट्यूमिन से शुरू करोगे एंड ऑल द थिंकर्स यू विल यूज, मार्क्स वगैरह एवरीवन यू विल यूज. ठीक है, रीजंस आपको देने हैं तो आप बताओगे ना विद एग्जांपल्स कैसे स्टेटस क्वेस्ट है. You will give that those reasons, and then guidance भी you will utilize. There's so many thinkers, so many examples. Subaltern perspective also you can utilize. Gallom with, there is no water tight compartmentalization sociology paper in paper 2. Even the paper 2 thinkers you will utilize in paper 1, and paper 1 knowledge you will utilize in paper 2. वो तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि एक सिलेबस बनाना था तो दो अलग अलग ना दे हैड मेड. ऐसे ही यू सी ना इन जीएस वी मेक एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन जीएस 1 2 3 4 व्हाइल वी स्टडी. बट अभी देखो जीएस 3 में क्वेश्चंस हैव कम व्हिच आर सो कॉल्ड ऑफ जीएस 2 नेचर. In GS2, IR questions have come which are mix of society and IR, economy and IR.
So when the UPSC will give you questions, they won't be expecting from you कि GS2 लिख रहे हो तो सिर्फ you have to write articles and you can't write the social angle. These all things are absurd. You have to apply your entire knowledge. You have to apply your entire knowledge. Then only you will give a very in-depth analysis. Because nowadays the question paper is not like previous times where the questions were very straightforward and coming from only one dimension, unidimensional questions. Now the questions are coming from the multi-dimensionality and different aspects are being discussed. So it is very important that you give respect to each and everything. Okay. अब ये देखो, do you think that the formal workspaces are free of gender biases? Argue your case. ये होता है ना कि इनफॉर्मल स्पेसेस में तो आई नो पीपल से harassment होता है and all of this are there, but here also तो things are there ना. TS Pakola said that there is invisible glass ceiling even in the formal sectors, है ना. You see the leadership roles, even the formal organization. You now give the example of COVID-19 pandemic. When the COVID-19 pandemic happened, even in the informal sector, formal sectors maybe the maximum women were fired. Maternity leave उससे ली जाती है उस when you apply and when you come back ना from maternity leave, they fire you. ठीक है. There are gender bias, there are sexual harassment. That's why the Sexual Harassment at Workplace Act was also formulated. You take any of the formal organization, there are plethora of examples. Even in formal sectors, there is pink collarization. You have to quote everyone. Naila Kabir, Karuna Ahmad, there are so many thinkers which you can quote. And argue your case है तो you have to give arguments plus examples and thinkers. Argue करो. ठीक है. फिर आप ये भी लिखोगे हाँ formal spaces में फिर भी there are regulations, social security, things are improving. Informal sectors में situation is even more worse. ठीक है. तो formalization it, to have a positive change is still easier compared to the informal organization. है ना. The organization which are not under the preview and control of government, तो वहां तो और भी चीजें are difficult. Antithesis तो conclude करो, government के initiatives भी लिखो, because you are writing the not the paper of PhD sociology, you are writing the paper of civil services in which optional paper is one of the part. Schemes, initiatives लिखने हैं. ठीक है. सीधा क्वेश्चन, हाउ डज वेबर सेबेस्टियन एड्रेस द ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिविटी डिबेट इन सोशियोलॉजी. तो वेबर का तो जन्म ही, द बर्थ ऑफ वेबर हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस. ही टुक अ पाथ ऑफ मिडिल पाथ एंड ही सेड कि ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी तो इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू आर सेलेक्टिंग एनी टॉपिक. तो सब्जेक्टिविटी विल बी देयर, वैल्यू बायस विल बी देयर, बट ये मेथड यूज करोगे तो ये जो है ये ऑब्जेक्टिविटी आपके ना रिसर्च प्रोसेस में बनी रहेगी. तो उसी पे ये क्वेश्चन है आपको जो आपको बताना है. ठीक है. तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी कर देना एक दो लाइन में, एंटीथेसिस एंड देन कंक्लूड इट. एजुकेशन इन सोशल चेंज मैंने लिखा था. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. समटाइम्स व्हाट विल हैपन, एजुकेशन एंड विमेन का सोशल चेंज दे विल आस्क एकदम नैरो डाउन करके, बट ये थोड़ा सा वाइड क्वेश्चन है तो और इजी है ना. कि और स्किल डेवलपमेंट भी लिया है यहाँ पे, एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज. क्रिटिकली एनालाइज क्यों है? बिकॉज अगेन आप आल्थुजर वगैरह डालोगे ना कि एजुकेशन मिल कैसा रहा है. एजुकेशन इज गिवन इन द मैनर ऑफ व्हाट सूट्स द बुर्जुआ क्लास, या स्टेट को जो सूट करता है, द आइडियोलॉजी ऑफ स्टेट. एंड स्टेट तो चाहता नहीं कि आप सब एजुकेट हो जाओ. द थिंग्स व्हिच वर सेड बाय सोक्रेटिस, आपको क्रिटिसाइज भी करना है ना. कैसा एजुकेशन मिल रहा है? स्टेटस कोइस्ट एजुकेशन मिल रहा है. अगली है तो एक गर्ल का फोटो लगा दो बुक में, है ना. स्टेटस कोइस्ट. जो हमारा एजुकेशन है वो भी स्टेटस कोइस्ट है. तो कैसे सोशल चेंज होगा? आप देखो ना, इफ द पार्टी चेंजेस इन पावर, suddenly the history books changes, the textbook changes, the prayers in school changes. Why this is happening? You are not supposed to say hello to the government in power. The government in power has a role to empower people, not to change the ideology and the way you think and the way you eat. This is not the privy of government. Governments are not your masters. Governments are not your personal masters. The way they act in developing societies like India, they are just there to empower you. They have a job role, and for that they are elected. They are not the masters.
They won't decide what you will eat, what you won't eat. This is not something that should be decided by government. Okay. So कैसे status quo है? And कैसे इसको break करना है? You have to write. Amartya Sen has also criticized. Conclude करो तो रविन्द्रनाथ टैगोर को लिखो education में. Education where the head is held high. यहाँ लिखो. Sociology option है तो क्या? What a beautiful conclusion it will be. It will give you half marks, 1 marks extra. That is how you have to approach. That is how you will get 150 plus marks. Not by those mechanical methods. Question देखो, what is science? Do you think that the methods used in natural science can be applied in sociology? Give reason for your answer. ये बिल्कुल पॉजिटिविस्ट है, नॉन पॉजिटिविस्ट के तो पीछे पड़ गए हैं. ठीक है, इन दिस एंटायर पेपर दे हैव बिकम, मतलब हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं एकदम. घुमा फिरा के वही ले आते हैं, है ना. तो अब इसमें एक ये प्रॉब्लम होती है कि आप जब क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो, डोंट सेलेक्ट, मतलब जिसका पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो. ऐसा नहीं हो कि कंटेंट सिमिलर वाले ही सारे क्वेश्चन लिख लिए. ठीक है, थोड़ा सोचना इसके बारे में, बिकॉज ऐसा ना हो जाए कि सारा क्वेश्चन ऐसा लिखो जिसमें कंटेंट ही सिमिलर है. जहाँ आपके पास चॉइस है, जहाँ नहीं चॉइस है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू हैव टू राइट. ओके, बट इफ यू नो ऑल द क्वेश्चन तो थोड़ा सा ये भी पर्सपेक्टिव रखना दिमाग में, है ना, क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके द्वारा. कई बार ऐसा होता है, एंड दिस हैज हैपेंड आई थिंक इन CSE 2023 also. For many questions their content was very similar. ठीक है, तो थोड़ा सा उनमें अगर लिखना भी पड़ रहा है तो यू हैव टू चेंज सटल तरीके से. इंट्रो एग्जाम्पल डाल देना, डायग्राम डाल देना, थोड़ा कंक्लूड अलग से करना, कुछ तो डू द सटल वेरिएशन जस्ट टू गेट मोर मार्क्स देन अदर्स. इट्स अ कॉम्पिटिटिव एक्सेलेंस टेस्ट. ये टेस्ट है ही नहीं किसी और चीज का. किसी को 280 मार्क्स आ रहे हैं, ही इज नॉट द फादर ऑफ सोशियोलॉजी. He is not someone who can teach you sociology. It's just in 3 hours, थोड़ी सी comparative superiority हल्की हल्की he had shown compared to others. To teach the sociology, you need to read sociology for 5, 6, 7 years. So many books, then you can teach the sociology. Any subject, be it physics, be it chemistry. ठीक है, तो थोड़ी सी comparative excellence you have to showcase. Next question is, what do you understand by gender-based domestic division of labor? इससे simple question क्या हो सकता है? Is it undergoing a change in the wake of increasing participation of women in formal employment? Clarify your answer with illustration. Gender-based domestic division of labor. यही तो feminist ने यहीं से तो शुरू किया था. ठीक है, Marxists used to say कि the private property आई, and private property के बाद women were enclosed in the closed four walls. एंड फिर उनको बोल दिया गया कि यू विल बी हैंडलिंग दी डेली चोर्स. ठीक है, आप घर का काम करोगे, एंड द मैन विल बिकम द ब्रेड विनर एंड दे विल डू आउटसाइड वर्क. आप क्या करोगे? आप बैठ के घर में चूल्हा चौका करोगे. देन व्हाट विल बिकम इज द मैन विल बिकम स्वामी, परमेश्वर, एंड आप क्या बन जाओगे? उन पर डिपेंडेंट. ठीक है, दिस वाज द सिस्टमैटिक exclusion and deprivation of women that has happened for lakhs of years. ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी जो है फेमिनिस्ट की, ये आपको बतानी है और होता कैसे, एंड हाउ इट ना ना कैसे ये क्रियान्वयन या हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड. हैव यू रेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्कल बार्गेन? होता ये है कि इन जनरल द पैट्रियार्की इज बीइंग प्रमोटेड बाय वुमेन ओनली. जो सबसे एल्डेस्ट वुमेन होगी ना फैमिली में, वही सबसे ज्यादा पैट्रियार्की की टॉर्च बियरर होगी. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कल बार्गेन, है ना. अपना स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पैट्रियार्को को एक्सेप्ट किया, फिर उसको दे आर ट्राइंग टू ऑल्सो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में दे आर ट्रांसमिटिंग. आपको बताया जा रहा है ना कि योर प्राइमरी रोल इज टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन. ये कहीं लॉ तो बनाया नहीं है. तो अब जब आप यू आर गोइंग टू इवन वर्क, देयर वाज अ women judge of former women judge of Supreme Court. She confessed that जब वो जुडिशरी में जाती थी एंड उनके बच्चों को टेक केयर नहीं करती थी, she used to feel guilty. अभी गिल्टी क्यों हुआ? गिल्टी she is feeling because society told you कि this is the role of women. मैन का रोल ये है, women का रोल ये है. women cries, men don't cry. women are not brave, men are brave. अरे जिसने मैन को पैदा किया, when a woman now gives birth to a children, that the pain that she handles is something which a extremely courageous person can only handle. So courage की तो बात ही कहाँ से आ गई? बट ये आपको ना किया गया है
ना एक सोशलाइजेशन, सोशल कैपिटल, और वो पूरा पैट्रियार्कल बार्गेन चलता है। तो ना व्हेन यू विल बी मैरिड, ना एक वुमेन जब मैरिड होती है तो सबसे पहले पैट्रियार्की की जितनी क्वालिटीज आपको डिजायरेबल होनी चाहिए वो आपकी जो सास होंगी इंडियन फैमिली में, शी विल ट्राई टू ना चेक ऑल दिस। तो विमेन ही है ना, बोला भी जाता है कि इन इंडिया विमेन ही विमेन की दुश्मन है। व्हाई दिस इज ना, तो ये ऐसे ही वर्क कर रहा है, ठीक है। थोड़ा इजी करके समझो चीजों को, सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी, एकदम हाई फाई एग्जाम्पल, हाई फाई थिंकर्स बस पढ़ लोगे तो फिर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा नहीं, 10 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके कुछ लिख पाओगे। और देखो जनरल ऑब्जर्वेशन, देखो देखो ना सास बहू के सीरियल्स देखो, रसोड़े में कौन था, ओके व्हाट इज दिस इज रबिश, दिस इज पैट्रियार्की, जेंडर बेस्ड डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर। अरे उसका काम यही थोड़ी है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स विद a bit of ease and by making it very understandable, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है, बट फिर भी वो है डबल शिफ्ट। अगर वो जॉब भी कर रही है तो उसको यहाँ पे आके काम करना पड़ रहा है। इवन इफ अ मैन वांट्स टू बी अ ना, कि वो चाहे कि घर में काम करे तो उसको ना, देयर आर थिंग्स व्हिच आर सेड, जोरू का गुलाम, ठीक है, ये जोरू का गुलाम है ना? तो ऐसी है, वो मैन नहीं है। इफ ही क्राइज ही इज नॉट अ मैन, इफ ही डज हाउस होल्ड वर्क ही इज नॉट अ मैन। देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर देयर इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो क्लैरिफाई करो, इलस्ट्रेशन दो, एग्जांपल्स दो। देखो ना सीरियल्स होते हैं सास बहू और साजिश, व्हाट इज दिस, सास बहू और साजिश। And these are examples I'm not just saying. These are even quoted by toppers. There was a topper named as ना प्रदीप, या एयर 93, एंड फिर दोबारा भी रैंक आई थी। उसने भी ये एग्जांपल लिखा था सास बहू और साजिश। These are the general observation which you have to write. समझना भी है इसे, लिखना भी है ये। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन यू असेस दी थिंग। बोरिंग इसलिए सोशियोलॉजी हो जाता है ना, बिकॉज आप क्रैम करते हो। अगर सोशियोलॉजी को यू विल रिलेट विद द सोसाइटी, इट विल बी नेवर बोरिंग, इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सोसाइटी को पढ़ रहे हो ना जिसमें आप यू आर बोर्न, तो हाउ इट कैन बी बोरिंग। हाउ कैन यू असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मूवमेंट इन द डिजिटल एरा। सोशल मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है इन डिजिटल एरा। अरे आजकल तो जो न्यू सोशल मूवमेंट्स हैं वो सब तो डिजिटल ही तरीके से हो रहे हैं, है ना। तो आप देखो ना, मी टू मूवमेंट है, हैश आई एम दैट वुमेन, जो वुमेन मूवमेंट्स हुए, environmental movements जो हो रहे हैं across the world, even the farmer movement was mobilized, was done ना पूरी तरीके से। वो जो एक मोमेंटम was made through social media। तो इम्पोर्टेंस तो अब बहुत ज्यादा हो गया है। इवन द आरजी कार इंसिडेंस, द ट्रेजिक इंसिडेंस, जो भी प्रेशर बनाया गया था, मोस्ट ऑफ द प्रेशर वाज बिल्ट थ्रू सोशल मीडिया, है इम्पोर्टेंस, बट अभी भी ग्राउंड सोशल मूवमेंट्स आर नीडेड। द ओनली मूवमेंट्स व्हिच आर डन डिजिटली और वो ग्राउंड पे कुछ नहीं है, तो उसका जो असर है, द ना द इम्पैक्ट इज वेरी वेरी लेस। आपको सारी चीजें बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। 10 ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ बहुत ज्यादा लिखने को है नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सैम्पलिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल रिसर्च, डिस्कस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैम्पलिंग विद देयर रिलेटिव एडवांटेज। ये तो मैंने क्वेश्चन भी दिया हुआ टेस्ट में, बहुत कितने सारे क्वेश्चन टेस्ट में दिए थे। आई ऑलवेज सेड ना, व्हेन पीपल जॉइंड माय ना वन टू वन मेंटरशिप, तो दे वर कंफ्यूज्ड, तो आई सेड कि यू हैव टू फोकस ऑन पीवाईक्यूज, ठीक है। हमारा टेस्ट भी जो होगा पीवाईक्यू यूनिट वाइज होगा। जब टेस्ट हो गया तो आई रिसीव्ड एटलीस्ट 7-8 मैसेज एंड 3-4 कॉल्स, सेड यस सर, नाउ आई रियलाइज व्हाई यू सेड दिस। बट रियलाइज होने में देर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अटेम्प्ट खराब हो गया एंड देन यू से यस सर यू सेड इट राइट, यस सर आई वाज लिसनिंग टू सम यूट्यूब का चैनल, है ना, ये सेइंग कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लंबस पढ़ लो, ये पढ़ लो ना, सम टॉपर ना। टॉपर बनने के बाद व्हाट हैपेंस इज दे विल से यू बिग बिग थिंग्स, आई यूज्ड टू स्टडी बाय हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग फैन, आई यूज्ड टू राइट आंसर व्हाइल स्लीपिंग। अरे नहीं है पॉसिबल भाई, दीज आर थिंग्स, एब्सर्ड थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है डायरेक्शन के साथ, समझ के पढ़ना है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना, आप भी बनोगे टॉपर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू थ्योरीज ऑफ मार्क्स, वेबर एंड दरकहाइम डिफर इन अंडरस्टैंडिंग रिलीजन। अरे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इतना देखो, मैंने बोला था कम, ये ना एक तरह का 3-3 4-4 थिंकर एक साथ दे देते हैं
This is a new type of question that has been thought of by UPSC. तो मार्क्स, वेबर और दरखाइम क्या? मार्क्स तो बिल्कुल रिलीजन के क्रिटिक था, बोलता था ये हफीम है, दिस इज ओपियम, आपको दिया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपके साथ जो भी गलत होता है, यू थिंक दैट दिस इज बिकॉज ऑफ माई बैड कर्मा, पास्ट में मैंने बुरे कर्म किए थे। अरे किसने देखा है भाई? अच्छा, इस जन्म में जो बुरे कर्म, द वन हु इज डूइंग बैड डीड्स was a very noble soul in last life, if at all there is a transmigration of soul and if there is afterlife, is it possible? Or the person who is very noble in this life was a ungli maar डाकू in past life? इसमें कोई रैशनैलिटी दिखती है आपको? नहीं दिखती है। तो कार्ल मार्क्स ने इसको बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया। कार्ल मार्क्स ने बोला कि जितनी भी आपके साथ डेप्रिवेशंस होती हैं, जो किंग करता है, जो एक का प्रिस्टली क्लास करता है, एंड द पीपल हु आर ट्रेडर्स, दे डू इट बाय सेइंग कि रिलीजन का आड़ लेके, रिलीजन को टूल बना के आपके साथ किया जाता है। So Marx said this is an opium of masses, and it's true as well in certain ways. You see, na, people cannot stay hungry for even 7 hours, 8 hours usually. But अभी बोल दो कि ये व्रत है और इससे एक पर्टिकुलर गॉड विल बिकम हैप्पी, अरे भाई आप 24 आवर बिना पानी पिए रह जाओगे। दिस इज द पावर ओपियम गिव्स यू, है ना? पीपल वॉक 30-40 किलोमीटर टू गो टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस श्राइन, बट ऐसे उनको 5 किलोमीटर चलने बोल दो कि ठीक है ये 5 किलोमीटर चलोगे तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, दे वोंट वॉक। दिस इज व्हाट मार्क्स यूज्ड टू से। है रेलेवेंस उसका, है ना? अभी भी रेलेवेंस है। अब देखो, आप इफ यू आर सीइंग विद रैशनैलिटी विल फाइंड द रेलेवेंस। वेबर वाज ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वेबर एक पॉजिटिविटी बताना चाह रहा था कि कैसे सिर्फ स्टेटस क्वोइस नहीं, एक पॉजिटिव चेंज भी लाता है ना रिलीजन, जिसमें ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो वो एक कॉन्सेप्ट दिया था मैक्स वेबर ने। दरखाइम वाज ऑल हंकी डोरियस, रिलीजन से सोशल सॉलिडारिटी आती है, रिलीजन से एक मोरालिटी बिल्ड होती है, रिलीजन से ये होता है, ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, इंटीग्रेटिव, अरुंटा ट्राइब की स्टडी, एंड ही सेड ऑल हंकी डोरी पॉजिटिव थिंग्स। ठीक है, तो आपको पहले थ्योरी बतानी है, डिफरेंस भी बताना है, रेलेवेंस भी बताना, सब कुछ बताना है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन, एक एक पेज तीनों को दे दो, कंक्लूड कर दो लास्ट में। सबका रेलेवेंस है, दरखाइम भी ठीक है, सोशल सॉलिडारिटी यस। अभी देखो, अभी गणेश उत्सव हुआ, तो it was started by Lokmanya Tilak only to build social solidarity. What was said by Durkheim? है application. What Weber said, you see now the community of Chettiars in South India. No, you see the Baniya communities. They have the spirit of capitalism. They do a lot of business. Marwadi communities, Sindhi communities. You know, so है positive change. And you see the Brahmins of India. No, they have the spirit of no, education, intellectualism. तो वो परस्यूट होता है उनका पढ़ाई करने का। हाँ, they give a lot of emphasis on education. ठीक है, तो ये भी तो एक स्पिरिट है, पॉजिटिव चेंज है ना। रिलीजन इज प्लेइंग अ रोल, अ पॉजिटिव रोल, नेगेटिव रोल भी है। यू थिंक अबाउट अनटचेबल्स, हाउ दे आर स्टिल ना। अभी देयर इज अ, आई थिंक देयर इज एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द टेंपल इन गुरुवायूर in Kerala. Some Muslim journalist entered a premise of a temple, and I think it has been purified. And there has been a lot of hue and cry that in this generation, in this time period of world, also we are following those primordial things. So I think this is a very recent news, 3-4 days ago. Okay. Concept: what is the nature of relationship between science and religion in modern society? Analyze with suitable example. साइंस और रिलीजन का क्या है? दोनों रिलेशनशिप है। देखो ना, हमारी सोसाइटी में तो साइंस इज इनफोर्सिंग रिलीजन, ई दर्शन। आप अब तो हद हो गई है। इन कुंभ मेला दे वर टेकिंग ना योर फोटोग्राफ्स एंड इमर्सिंग दैट इन गेंजेस एंड सेइंग कि हो गया आपका स्नान। दिस इज द हाइट ऑफ ब्लाइंडनेस ना, हाइट ऑफ ब्लाइंड फेथ। सो यहाँ तो हमारे जो साइंस है, दैट इज इन मेनी एस्पेक्ट्स इट इज रीइंफोर्सिंग डॉगमास एज वेल। एंड यस, रिलीजन को ये स्ट्रेंथन भी करता है, वीकन भी करता है। साइंस कैसे? बिकॉज सी, पहले ना द कंसेप्शन ऑफ द यूनिवर्स वाज दैट कि कुछ कुछ स्टोरीज बनी हुई थी। सम रिलीजन वाज सेइंग कुछ, सम रिलीजन वाज सेइंग कुछ, सम सोसाइटी हैज डिफरेंट स्टोरीज। बट व्हेन बिग बैंग थ्योरी आई तो सारी थ्योरीज हवा में चली गई। जिन्होंने नहीं एजुकेशन लिया हो तो अभी भी दे बिलीव इन ऑल दिस। ठीक है, एंड अर्थ का शेप हो चाहे अर्थ का सीजन हो, हर चीज पे रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स वर देयर।
but everything has been dismantled. But still there are people who believe in those religious theories, so they are ignorant people. But science कैसे उसको dismantle करता है, और कुछ-कुछ नई religious lines भी आई है, जैसे साइंटोलॉजी बोलते हैं, that has also come. A believer of science, उसको religion की तरह मानते हैं. So all of this you have to discuss. Suitable example भी दो, कैसे गवर्नमेंट्स यूज कर रहे हैं ना, they have ना साइंस का यूज करके they are making ना पैकेज ऑफ रिलीजन, है ना, वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं. अब इस फोन देख लो आप, ना ईशा फाउंडेशन देख लो, देर आर सो दे आर पैकेजिंग द इट लाइक अ प्रोडक्ट. तो साइंस का यूज करके तो दे आर डूइंग इट. वो तो रील्स भी बनवाते हैं, प्रमोट इट एंड दे डू एवरीथिंग पॉसिबल, और डिजिटल मार्केटिंग सब होता है, एवरीथिंग इज डन. बताओ ये पूरा अच्छे से, है ना. और अगर उसको अच्छे से एकदम कंक्लूड करना है मिडिल ग्राउंड, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला ही था रिलीजन और साइंस पे. ठीक है, लेम और ब्लाइंड वाला कोटेशन दैट यू कैन गिव. एंटीथेटिक नहीं होता है कई जगह, कैसे एंटीथेटिक नहीं होता दोनों, तो उसका एग्जांपल्स तो मैंने आपको बता ही दिया, स्ट्रेंथन कर रहा है बल्कि. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ना पीछे पड़ गया था यूपीएससी पता नहीं इस साल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज प्रपोज्ड इन द यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2015. अब ये क्वेश्चन तो पूरा जनरल स्टडी ऐसा है ना, कि एलिमेंट्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना, इसके एलिमेंट्स क्या है. एलिमेंट जब लिख रहे हो ना, तो उसको जेंडर इक्वालिटी है तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से रिलेट करो, ठीक है, कैपेबिलिटी अप्रोच से रिलेट करो, ठीक है, एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन सोशल चेंज से रिलेट करो. कुछ कुछ लिखो उसमें, थ्योरीज लिखो, है ना. ये जो सोशल गोल है ये सिग्निफाई, ये अकॉर्डिंग टू ये इस तरीके की चेंजेस लाने की कोशिश करता है. सोशियोलॉजिकल बनाने का ये तरीका है ना, हमारे पास तो इतनी सारी थ्योरीज है, बनाओ उसको, यूज करो. जीएस को भी ऐसे सोशियोलॉजिकल हमें बनाना है. अगर समझ लिया तो 50 चीजें लिखने के लिए एसडीजी गोल्स में भी, ठीक है. तो ये सारी चीजें आप दो, ठीक है, आराम से कर सकते हो आप. बस इसको रिलेट करते हो सबको थ्योरीज से. क्वेश्चन है, हाउ डू सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज एनजीओ एंड एसएसजीज कंट्रीब्यूट टू ग्रास रूट लेवल सोशल चेंजेस. अरे बहुत बढ़िया है ना. ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट जो हमारा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में आता है, वहां से उठा के एग्जाम्पल्स भर के लिखने हैं, ठीक है. और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, सबल्टन पर्सपेक्टिव सब ला देना है यहाँ पे, ठीक है. एंड एग्जाम्पल्स तो आपको बहुत सारे हैं ही ना, वो आपको लिखना है कैसे ग्रास रूट लेवल सोशल चेंज. अरे गवर्नमेंट भी तो क्या क्या निकाल लिए, लखपति दीदी से लेकर जब शुरू ही हुआ था हमारा एसएचजी लिंक बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स, ठीक है. आपने देखा होगा केरला में तो कुटुम्बश्री ने व्हाट व्हाट वंडर्स दे हैव डन, ठीक है. यू यू वांट टू रियली सी अ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, गो टू केरला. एवरीबडी, every Indian should go once Kerala and realize what is called as women empowerment. You will realize it in real manner in India. You will see women's running shops, you will see women's driving buses, women managing tolls, women doing everything. And you will see more women's outside than men while you will travel anywhere. They will be traveling for work, they will be doing everything possible thing. But when I travel in Delhi, I see 10 men, 5 women, है ना, बाहर भी नहीं निकलती हैं. So this you need to ना, कैसे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने कैसे कंट्रीब्यूट किया ग्रास रूट लेवल सोशल चेंजेस, इम्यूनाइजेशन से लेकर हर प्रोसेस में, हाउ दे प्ले अ वाइटल रोल. अरे आप वो देखो ना, एड्स के का जो अवेयरनेस करना था, तो वो भी तो ग्रास रूट लेवल से ही पॉसिबल हो पाया, है ना. तमिलनाडु जाओ, केरला जाओ, जो सोशल चेंजेस हुए हैं दे वर ब्रॉट बाय देम. जो एनजीओज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वो थोड़े से, जो तो हमारा हिंदी बेल्ट है, इन दैट इट इज ना लेस इन नंबर्स, एंड दैट इज व्हाई द पॉजिटिव सोशल चेंजेस specifically has been laggard. Even if there are certain states like Haryana who has developed a lot in terms of GDP, but the social level grassroots changes haven't been there. जिसमें कॉन्सेप्ट है ऑकबर्न का ऑफ सोशल लैग, ना कल्चरल लैग, ठीक है. तो कल्चरल लैग है वहां पे, मटेरियल चेंजेस हो रही हैं बट कल्चर अभी भी पीछे है. अब देखो इतनी ऑनर किलिंग्स एंड ऑल द एक्टिविटीज हैपन हियर. वन ऑफ माय स्टूडेंट वाज सब्जेक्टेड टू a lot of violence, and she reached out to me, ठीक है, with respect to it. She wanted to marry someone of her choice, and then she was beaten by own parents and family wale. She was from Haryana. So this is happening in nowadays. A first hand experience I have seen. So आपको बताना है कैसे ये करता है, डिस्कस करो रोल को, ठीक है. बट कैसे ये
नहीं हो पाता है तो देन सोसाइटी, सोशल कैपिटल इज नीडेड ना। सोशल कैपिटल नहीं होगा, इफ द सोसाइटी इज मार्ड बाय कास्टिज्म, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल बिकम सक्सेसफुल? इफ सोसाइटी इज मार्ड बाय पैट्रियार्की, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप विल बिकम सक्सेसफुल? उनको सक्सेसफुल होने के लिए भी सोसाइटल चेंजेस जो होने हैं उसमें एजुकेशन बढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन नहीं बढ़ेगा तो अवेयरनेस वोंट कम, courage won't come. Education gives you voice to speak. An educated woman will stand up for herself. ठीक है? तो the Kerala, the Tamil Nadu, they increased the education level of women, and then their participation even became manifold. They started now bridging across the caste lines and all the lines. If you go to Kerala and you see the erstwhile depressed caste like Ijawas, they have taken a long strides in terms of development in Kerala. So this is how a society is built using the NGOs and self-help groups. लिखना है आपको, थिंकर के साथ साथ एग्जाम्पल एंड ऑब्जर्वेशन लिखने बहुत जरूरी है। सोशियोलॉजी आंसर इज नॉट कि 10 थिंकर के नाम लिख दिए। नैरेटिव थिंकर्स आर टू सब्सटेंशिएट, यू आल्सो हैव टू गिव एग्जांपल, यू आल्सो हैव टू शो डाइवर्सिटी एंड डाइवर्स एंड इन डेप्थ एनालिसिस टू गेट गुड मार्क्स। अगर आप ये लिख दोगे ना सिर्फ निवेदिता मेनन ने ये बोला एंड ये थिंकर नहीं, ये थिंकर नहीं, ये थिंकर नहीं, ये थिंकर नहीं है, 20 में हार्डली 7-8 मार्क्स, दैट्स इट। You won't get more marks. You see the people who have got 300, 290, 305, how they write answers. This is how you have to understand things. Don't just cram the thinkers. Thinker के भी पर्सपेक्टिव को रिलेट करो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, in what ways does the queer kinship challenge the traditional kinship system substantiate? ये तो queer community आप देख ही रहे हो ना, थर्ड जेंडर पे आई हैड टोल्ड यू कि क्वेश्चन आएगा कैसे। वो ट्रेडिशनल किनशिप सिस्टम क्या था हमारा? ट्रेडिशनल किनशिप सिस्टम वाज बेस्ड ऑन आपका ना विलेज। तो विलेज में एक बोला जाता था ऑल द वुमेन यूज्ड टू बी ऑफ सेम विलेज। तो वो जितने भी मैन होते थे उनकी सिस्टर के तौर पे देखते थे। किनशिप सिस्टम क्लोज नाइट रिलेशनशिप होता था, एक विलेज को एक तरह का फैमिली जैसा। बट उसमें फिर कास्ट कटिंग क्रॉस कास्ट लाइन होती थी। एक कास्ट में ये सारी चीज एप्लीकेबल होती थी, बट डिफरेंट कास्ट में एवरीथिंग वाज डिफरेंट। even their temples, even their wells, even their pathways to travel were different. ठीक है, बट ये क्वेर किनशिप जो है वो कटिंग अक्रॉस दीज लाइंस जा रहा है, कटिंग अक्रॉस दीज प्रीमोडियल थिंग्स जा रहा है ना। तो कैसे ये चैलेंज कर रहा है ना ये पूरा जो ट्रेडिशनल वेज था किनशिप सिस्टम का। ठीक है, वो चेंज हो रहा है। यहाँ थोड़ा फिक्टिव किन वाला अप्रोच आ रहा है, योर चॉइसेस। हियर द थिंग दे आर गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय देयर द ओरिएंटेशन, है ना। तो ये कैसे चेंज कर रहा है, ये कैसे ट्रेडिशनल नोशन को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको डिस्कस करना, बट आपको ये चैलेंजेस भी लिखने की, इनको तो अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ना। तो सोसाइटी में एक्सक्लूजन इतना ज्यादा है कि वो अपना सिस्टम जो बना भी रहे हो वो एक तरीके से ना एक देखना ना, अब जब देखोगे ना, एक तो उनको ऐसा कर दिया गया कि वो जब बाहर कम्युनिटी में कोई भी मार्च निकालते हैं वो अजीब सा बिहेव करते हैं, बिकॉज दे हैव बीन सेड कि वो आप अलग हो, आप इंसान नहीं हो। तो उनके अंदर भी तो वो सोशलाइजेशन आ गया ना, तो वो भी आपका जो अट्रैक्शन लेने के लिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, दे आल्सो बिहेव इन अनयूजुअल मैनर एंड देन पीपल लाफ एंड डू व्हाट नॉट। बट आफ्टर ऑल इफ यू आर born with that kind of orientation, or you become that of that kind of orientation, it's not a disease. You have to understand it. Anybody can belong to that. So that empathy and compassion and acceptability, specifically in the traditional feudal societies, developing countries, is still not there. तो बहुत challenges है ना। और बहुत challenges है लीगल भी इस वजह से। You see the government starts defending the ना feudal things, religious things। शाहबानो केस देख लो, आप कोई भी केसेस उठा लो, है ना, different perspectives, government starts challenging it। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ना एक थोड़ा सोचने का क्वेश्चन था। कुछ कुछ क्वेश्चन थे सोचने के, इवन इन द सोशियोलॉजी पेपर 1, विच कैन बी ओनली आंसर्ड बाय 3 थिंग्स। एक, समझ के पढ़ो। दूसरा, रिवाइज करो, मैनेजेबल थिंग्स रखो। थर्ड, प्रैक्टिस करो। These 3 will help you to get 150 marks in sociology paper 1. Yes, it is achievable. Yes, you can do that. Yes, this is not something done by extraterrestrial people. And yes, it will give you a ticket for interviews.
This is the importance of sociology paper 1. Okay, and this is how you have to approach sociology paper 1. कुछ दिन के टाइम के बाद I will come up with the analysis of sociology paper 2 also. अभी I will take the doubts. अगर आपके पास जो भी डाउट है, ऐसे तो आधे लोग तो ऐसे ही भाग गए पहले ही, तो you can see the competition is very less. I will take one by one name and you can ask your doubt. ठीक है? Ashish, if you have any doubt, you can unmute yourself and ask. Yes, sir. Sir, बताइए. I have one of the major problem is of brainstorming the questions. Means how much time I should put to brainstorm and in which format. Means the writing the only in subtopics or in what way? देखिए, दो चीजें करनी है ना. यू हैव टू राइट द एक्चुअल आंसर्स आल्सो व्हिच यू आर डूइंग. ब्रेनस्टॉर्म कैसे किया जाता है? ब्रेनस्टॉर्म इज डन इन अ मैनर, आप कोई क्वेश्चन उठाओ, ठीक है? क्वेश्चन उठाने के बाद द फर्स्ट थिंग इन ब्रेनस्टॉर्मिंग इज डन इज दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ क्वेश्चन एंड व्हाट आर द सब पार्ट्स. तो पहले लिख लो दीज आर द सब पार्ट्स. ओके, एंड देन रफली इंट्रोडक्शन में व्हाट थिंकर और व्हाट पर्टिकुलर डेफिनेशन आई वुड हैव रिटन, बहुत ब्रीफ में. एंड देन व्हाट आर द डायमेंशंस, सिर्फ वन वर्ड में, ठीक है? और थिंकर जो हम इंक्लूड कर सकते थे, या कंक्लूजन में कौन थिंकर से हम कंक्लूड ये यूज कर सकते थे. तो माइंड में सोच रहे हो, लिख कम रहे हो, सोच ज्यादा रहे हो. यू आर यूजिंग योर माइंड मोर, राइटिंग लेस. दिस इज कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग. Because you cannot write 1000 answers, but you can brainstorm 1000 questions. ठीक है? This is possible because it will reduce your effort and time, both. But it is as useful as you writing answers. This is the beauty of brainstorming. और brainstorming एक तरह का मैं बोलता हूँ, it is also a process which helps you to revise. कुछ भी आप उठाओ एंड ब्रेन चलाओ, जो आप ब्रेन से उसको ना एक तरीके से व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर टेकिंग थिंग्स आउट ऑफ योर ब्रेन. क्योंकि ब्रेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और जो इंफॉर्मेशन आप निकालोगे ब्रेनस्टॉर्मिंग से वो ऊपर आ जाएंगी. तो अगली बार व्हेन दिस दैट क्वेश्चन विल कम, यू विल बी एबल टू राइट इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर और आराम से लिख दो. ठीक है? Thank you, sir. और कोई डाउट? चंचल, एनी डाउट? सर स्पेसिफिकली अभी कोई डाउट है नहीं. मैंने बहुत सारे मतलब लिखे आंसर, तो एक्चुअली जी. फीडबैक नहीं मिला सही से, तो भी पता कोई नहीं नहीं, है वो किस तो डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं तो जा वो तो रहे हैं. हम लोग दे तो देंगे. उसकी चिंता मत करिए, वो तो टेस्ट वगैरह में हम लोग दे देंगे. करना ही है आपको कि जो फीडबैक मिलेगा बस उसको इनकलकेट करते जाना है. ठीक है? ओके सर. ठीक है, डोंट वरी. मनोगना, एनी डाउट? No, sir. ओके. रवि, एनी डाउट? तनु, एनी डाउट? No, sir. वरालक्ष्मी, एनी डाउट? No, sir. ओके. एंड आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स. है ना? समझ आया चीजें? हैव यू अंडरस्टूड इट, और कुछ दिमाग में Yes, गया sir. या समथिंग? यू गॉट अ ब्लूप्रिंट कैसे यू हैव टू अप्रोच सोशियोलॉजी पेपर 1. ठीक है? सो वन थिंग इज दैट यू ऑल विल प्लेज वन थिंग, दैट यू विल not procrastinate. You will not try to think that कल कर लेंगे. You have to do things today itself. There is no tomorrow. There is no tomorrow. And you have to invest in your present to make your future. अगर आप सिंपली बैठे हो और आप सोच रहे हो फ्यूचर में क्या होगा, अगर एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं कब एंजॉय करूंगी, so these all things won't take you anywhere. You just have to invest in your present. Your present shapes your future. Your every bit of hard work, your every bit of sacrifice, that makes your future. My father used to say one thing, that the person who works very hard in their 20s enjoy their 30s, 40s, 50s, and specifically their 60s. And the people who enjoy their 20s a lot,
they have to suffer in their 30s, 40s, 50s and more in 60s. So ये जो 20s का जो टाइम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Specifically if you are not from a very privileged background. If you are from a humble background, lower middle class, है ना? So you have to respect your 20s. Otherwise, the whole life you will suffer. और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. Our society is increasingly becoming capitalist. आप एग्जाम फेल करो ना, that institute वाला people will think, okay ठीक है, 1 साल और टेस्ट सीरीज, 1 साल और mentorship, 1 साल और गाइडेंस प्रोग्राम, 1 साल और CSET initiative. When the CSET paper became difficult, people became so happy. CSET initiatives became tenfold. ठीक है? So your failures will make others happy. So you have to succeed. You have to burn your midnight oil for the upcoming 1 year to make you happy for the next 30 years in terms of your work life. There are other perspectives as well, but for work life, this is important because this you are doing because you have some why for it. Don't waste your time. I simply hate when people are just wasting their time by sacrificing everything. Yeah, you could have done a job, you could have married, you could have a boyfriend, girlfriend, and enjoyed. Na? So if you are coming here, you are investing money, you investing your youth and still wasting time. ये तो यही बात होगी ना. There was a story of कालिदास. कालिदास was sitting on a tree. जिस ब्रांच पे बैठा था उसी को काट रहा था कालिदास. ठीक है. So this is not something which you have to do. करोगे तो 1-to-1 वाले जो भी हैं उनको तो मैं डांटूंगा, है ना? जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो डांटूंगा मैं. एंड आप आगे पीछे बोलोगे भी कि क्या समझते हैं सर अपने आप को. ठीक है ना? हमने भी वो गलतियां की है, लेकिन हम चाहते हैं आप नहीं करो. ठीक है. 3 लोग हमेशा आपकी सक्सेस से खुश होंगे. एक आपके मदर, एक आपका पिता, फादर एंड एक आपका टीचर. इन तीनों को आपके सक्सेस से हमेशा खुशी मिलेगी, है ना? अगर आप ब्लेस्ड हो तो आपको पार्टनर भी लाइफ में ऐसा मिल जाएगा जो आपके सक्सेस से खुश होगा. वो ब्लेस्ड होने पे होता है. बाकी जितनी लोग हैं ना दुनिया में, those people who are coming, I am your well wisher, और आपका टाइम वेस्ट करने आते हैं वो आपके दुख में या आपके सुख में, है ना? सुख में वो जल जाएंगे, दुख में आएंगे, अरे अरे बहुत गलत हुआ, बहुत. दे आर एंजॉयिंग योर डिफीट, योर ग्रीफ. सो व्हाई यू आर वेस्टिंग टाइम? यू हैव टू लिव लाइफ द वे यू वांट एंड यू हैव टू गिव योर 100%. इसीलिए मैं इतने सारे ब्लॉग्स लिखता हूँ. लोगों को लगता है ज्ञान दे रहा है. दिस इज नॉट ज्ञान. आई वांट दैट द मिस्टेक्स that people I have seen have committed and they have destroyed their career. I know my students who have committed suicide. Can you believe? I have talked to them. I have guided them. They have committed suicide. I have seen them. I have seen people destroying their career. That's why I write those big blogs and I have written books as well. यही reason है. There is nothing to just show off कि ये कर लिया, वो किया, मैंने ये सीखा, वो सीखा. No. It's just that you do not commit mistake. Because I am here not to make यही मेरा पैसा कमाने का जरिया है. I was a very good student. I have very good degrees and can go anywhere in the world. I got selected in USA as well, top university. I can go anytime. I can do any other work. This is not something where I am coming just to make money. I am coming here to change lives. Because I believe that I can show path to thousands of people. My one message can impact straight away 5,000, 10,000 people. One message. So that is why I am telling you कि आप टाइम वेस्ट मत करो. टाइम वेस्ट करोगे, लाइफ आपका टाइम वेस्ट कर देगी, खत्म कर देगी. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. आपको अभी से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना. 1 year, just 1 year. नेक्स्ट ईयर सितंबर मेंस खत्म, सब कुछ खत्म, जो करना है करना. आई विल से ठीक है, एंजॉय, है ना. इंटरव्यू इज समथिंग वेयर मल्टी डायमेंशनलिटी इज नीडेड. तो आप हॉबीज वगैरह जो भी परस्यू करोगे उससे और अच्छे नंबर आएंगे आपके. ठीक है. वहां थोड़ा सोशल बनोगे, बात करोगे तो और अच्छे नंबर आएंगे. सो आई वोंट टेल यू कि ये मत करो वो मत करो, बट 1 साल मत करो टाइम वेस्ट. ठीक है. थैंक यू. आई होप Thank you so you much, sir, understood. for this wonderful session. Yes. Welcome. Okay. Bye everyone. Just push yourself and get into the top 10. ठीक है. टॉप 10 सोचो ना, रैंक भी सोच रहे हो तो
सर एक बंदा बोला सर अगली बार मुझे मेंस लिखना, आई सेड प्लीज देन लीव माय मेंटरशिप, ठीक है, आई डोंट वांट पीपल हु हैव सच अ क्या बोलते हैं उसको, पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन, कि बस मुझे मेंस लिखना है। अरे मेंस लिखना है, ये क्या एस्पिरेशन है? बोलो टॉप 10 में आना है, टॉप 10 में आना है बोलोगे तभी तो कोई रैंक आएगी। यू शुडंट हैव दिस पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशन। और कोई रैंक ऑन लाया इज नॉट एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल, आई हैव सीन वेरी वेरी कॉमन पीपल कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड गेटिंग रैंक। कुछ मैटर नहीं करता आपके 50% नंबर थे, 40% नंबर थे, आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, कास्ट से, यहाँ हार्ड वर्क कर लोगे, टाइमली काम कर लोगे, चमक जाओगे, यहाँ पे गलतियां कर लोगे, आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट होगे, एनटीएससी स्कॉलर होगे, केवीपीवाई स्कॉलर होगे, कुछ भी होगे, कुछ नहीं होगा। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर टाइम एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट योर एफर्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, टेक केयर, बेस्ट विशेस।